یہ لوگوں تک کیسے پہنچے گی، کیسے یہ نعمت جائے گی؟ تو اس وقت آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو مہربانی فرمائی وہ سمجھداروں کے لیے بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام بدل جائے گا، کام جاری رہے گا۔ آج جس کام کے کرنے والے کو تم نبی کے نام سے جانتے ہو، آج جو نعمت تمہیں نبی کی ذات سے نصیب ہوئی ہے، کل یہی نعمت ولی کی ذات سے نصیب ہوگی اور صرف نام تبدیل ہو جائے گا۔ جس نعمت کا وارث بن کر میں آیا ہوں وہ بھی اسی نعمت کے وارث ہوں گے، اور جس طرح مجھ سے محبت کی انتہا کر کے تم اس نعمت تک پہنچ گئے تو ان سے جو محبت کی انتہا کریں گے وہ بھی اس نعمت تک پہنچ جائیں گے، ان کی جو تابعداری کی انتہا کریں گے وہ بھی اس نعمت تک پہنچ جائیں گے، جو ان پر قربان ہونے کی انتہا کریں گے وہ بھی اس نعمت تک پہنچ جائیں گے۔ جس طرح میری ذات پر قربان ہو کر اس نعمت عظمیٰ کو پایا ہے، اسی طرح ان کے ماننے والے ان پر قربان ہو کر اس نعمت عظمیٰ کو پا لیں گے۔ تو محبوب خدا نے اس نعمت عظمیٰ کو پانے کے لیے جو رستہ ہمارے لیے منتخب فرمایا ہے، اور اس رستے کو ولایت کہا جاتا ہے، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ جس سلسلہ عالیہ سے ہماری نسبت ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ یہی وہ سلسلہ ہے کہ جو ہمیں اس تمام تر حقیقت تک لے جا سکتا ہے، یہی وہ سلسلہ ہے جو ہمیں تمام تر حقیقت تک رسائی دلا سکتا ہے، یہی وہ سلسلہ ہے جو ہمیں عام سے خاص اور خاص سے خاصانے خاص بنا سکتا ہے۔ لیکن جب تک اس سلسلے کے قوانین کو جو ہے اپناؤ گے نہیں، جب تک اس سلسلے کے طریقہ کار کو سمجھو گے نہیں، جب تک پیشوا سے محبت کرنے کا سلیقہ نہیں آئے گا، جب تک پیشوا کی تابعداری کا سلیقہ نہیں آئے گا، جب تک پیشوا کی بات پر لبیک کہنے کا سلیقہ نہیں آئے گا، جب تک اس کی انتہا تک نہیں جاؤ گے۔ اگر آپ پیشوا کی بات پر لبیک کہتے ہو، چند باتوں پہ لبیک کہہ لیا باقی چھوڑ دی، اگر تابعداری کرتے ہو چند باتوں کی کر لی باقی چھوڑ دی، اگر محبت کرتے ہو کبھی کر لی کبھی نہ کی، تو پھر اس انتہا کو نہیں پہنچ سکو گے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمارا نصیب کی ہے۔ اس انتہا تک پہنچنے کے لیے ہمیں جو طریقہ سکھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے، جو سلسلہ در سلسلہ چلا آ رہا ہے، بلا شبہ وہ یہی پیغام ہے جو سلسلہ در سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ اپنے شیخ سے محبت کرو اور جان و دل کے ساتھ کرو، اور محبت کی انتہا تک پہنچنے کی کوشش کرو تاکہ تمہاری محبت عشق میں تبدیل ہو جائے، اور جب تمہاری محبت عشق میں تبدیل ہوگی تو پھر تمہارے لیے وہ دروازے کھلیں گے جو عام لوگوں کے لیے نہیں کھلتے، پھر تم ان منزلوں کو پاؤ گے جو عام لوگ منزلوں کو نہیں پاتے، پھر تمہاری رسائیاں ان حقیقتوں تک ہوں گی جن حقیقتوں تک رسائیاں عام لوگوں کی نہیں ہوتی ہیں۔ بلا شبہ شیخ سے محبت کی انتہا، شیخ سے کی تابعداری کی انتہا، شیخ پر قربان ہونے کی انتہا، شیخ کی بات پر لبیک کہنے کی انتہا، یہ وہ درجہ ہے کہ جب کوئی بھی مرید اپنے پیشوا سے محبت کرتے کرتے اس درجے پر پہنچتا ہے، اپنے پیشوا کی تابعداری کرتے کرتے اس درجے پر پہنچتا ہے، اپنے پیشوا پر قربان ہوتے ہوتے اس درجے پر پہنچتا ہے، تو بلا شبہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے لیے سارے دروازے کھول دیتی ہے، اور پھر کوئی چیز اللہ اس سے پوشیدہ نہیں رکھتا، ہر چیز اس پر کھول کر عیاں کر دیتا ہے۔ اور ہماری تاریخ بھری پڑی ہے اس چیز سے کہ ہمارے شہنشاہوں نے کہ جن کے ہم پیروکار ہیں، جن کی محبت کے ہم دعوے دار ہیں، جن کا ہم نام جپتے ہیں، جن کی ہم نسبت کا اقرار کرتے ہیں، انہوں نے بھی یہی سارا کچھ کر کے ہمیں سبق دے دیا کہ شیخ سے محبت کرنی ہے تو اس کی انتہا یہ ہے کہ اپنی جان کو بھی عزیز نہیں سمجھنا۔ یہ کب پتا چلا؟ جب بابا فرید الدین گنج شکر نے اپنی آنکھ جو ہے نکال کر اپنے پیشوا کی رضا کی خاطر دے دی، جب اپنے جسم پر انگیٹھی باندھ کر اپنا جسم جلنے دیا کہ میرے پیشوا کو سردی نہ لگے، اور ہمیں بتا دیا کہ پیشوا کو راضی کرنے کی انتہا کیا ہے، پیشوا سے محبت کی انتہا کیا ہے کہ اپنا گھر بار بیوی بچے سب کچھ چھوڑ کر ساری زندگی پیشوا کے قدموں میں گزار دی، اور ہمیں بتا دیا کہ محبت کی انتہا یہ ہے پیشوا پر اپنا جان قربان کر کے، اپنا مال قربان کر کے، اپنا تن من دھن لٹا کر ہمیں پیغام دے دیا کہ جب تک تم اپنی محبت کو، اپنے اقرار کو، اپنی تابعداری کو اس کی معراج تک یعنی انتہا تک نہیں لے کر جاؤ گے تو تب تک وہ حقیقت، اس کے دروازے تمہارے لیے نہیں کھلیں گے۔
जो तुम्हारे नसीब में तो है, लेकिन जब तक उस हकीकत को देखने के काबिल नहीं हो जाओगे, जब तक तुम्हारी निगाह उसको देखने के काबिल नहीं हो जाएगी, तब तक उसके दरवाजे आपके लिए खुलेंगे नहीं। क्यों? कि आपने उस हकीकत को पाना है, उस हकीकत को देखकर जलना तो नहीं है। वो तो हकीकत वो है कि जिसको देखकर पहाड़ जलकर सुरमा बन गया, वो बर्दाश्त ना कर सका। और हमारे लिए उस हकीकत का अल्लाह ताला की ज़ात ने अकमल कामिल जो है हमारे लिए ज़हूर मेहरबानी फरमाया है कि हमारे नसीब में किया उसको। लेकिन कब? जब हम अपने आप को इस तरीक़ेकार का मुकम्मल पैरोकार बनाएंगे। दरवेशी सिलसिले से वाबस्ता होने के बाद जिन नेमतों का तज़किरा होता है और जिस तरतीब से होता है, वो नेमतें, उसकी तरतीब ये है कि दरवेश ये मेहरबानी फरमाते हैं कि अपने शेख से मोहब्बत करते करते जब उस मोहब्बत की इंतहा को बंदा पहुंचता है, जब उसकी इकरार की इंतहा को पहुंचता है, जब ताबेदारी की इंतहा को पहुंचता है, तो उसे सबसे पहली मंजिल जो अता होती है उसे फनाफी शेख कहा जाता है। उसे पहली मंजिल जो अता होती है, गौर तवज्जो रखिएगा कि बहुत बड़ा फलसफा है जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, और ये सारा हमारे शेख करीम की ज़ात मुबारक का फैज़ान है कि जिनका उर्स मुबारक हम मनाने जा रहे हैं, कि उन्हीं की ज़ात का तसर्रुफ है कि आज हम वो बात कर रहे हैं जो सिद्दीक़ अकबर के हिस्से में आई है, आज हम वो बात कर रहे हैं जो फारूक आज़म के हिस्से में आई है, आज हम वो बात कर रहे हैं जो उस्मान गनी के हिस्से में आई है, जो मौला कायनात के हिस्से में आई है। उन नेमतों का तज़किरा कर रहे हैं और किसकी मेहरबानी और फजल से कर रहे हैं? मेरे शेख करीम हादी बरक किबला आलम हुजूर किबला पीर मोहम्मद उमर शाह साहब की ज़ात मुबारक की वजह से, कि जिनके तुफैल आज हम जैसे निकम्मों को, हम जैसे नाकारा लोगों को, कि जो किसी काम के नहीं है, ना हमने कोई चिल्ले किए, ना हमने कोई वज़ाइफ किए, ना हमने कोई जंगलों में गए, ना हम पहाड़ों में गए, ना हमने कोई हफ्स कबीर किए हैं, ना हमने कोई उल्टे लटके हैं। क्या किया? हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन आपकी ज़ात मुबारक का तसर्रुफ ये है कि हमने थोड़ी थोड़ी सी भी अगर तवज्जो की है, थोड़ी थोड़ी सी भी अपनी मोहब्बत को पाकीज़ा करने की कोशिश की है, तो उसका समर हमें ये मिला है कि हमें इस नेमत उज़्मा की खबर आपने अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अता फरमाई है। जितनी जिसकी इस्तिताअत है उसको उतनी अता फरमाई है। जितना जिसने अपने अंदर जो है वो ज़रफ़ पैदा किया है, उतना आपने उसको इस हकीकत का वारिस उसको बनाया है, उतनी हकीकत उसको आश्कार की है आपने। और ये आप ही का तसर्रुफ है जो हम कायनात की सबसे बड़ी हकीकत पर आज बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। तो दरवेश की सोबत में आने के बाद जो सबसे पहला इनाम जो इसकी इंतहा को पहुंचने के बाद मिलता है, मोहब्बत की इंतहा, ताबेदारी की इंतहा, कुर्बानी की इंतहा, इकरार की इंतहा, इस पर पहुंचने के बाद जो पहला इनाम मिलता है वो ये मिलता है कि बंदे को फनाफी शेख की दौलत अता हो जाती है। यानी वो शेख में फना होना अल्लाह उसका नसीब कर देता है कि जब जब अल्लाह उस पर मेहरबानी फरमाता है वो शेख में फना हो जाता है। और शेख में फना होने का पैगाम किसने दिया है? रब्बे दुल जलाल ने। उसी ने फरमाया कि दाखिल हो जाओ बीच मेरे बंदे के और आ जाओ मेरी जन्नत में। और उसका पहला दर्जा ये है कि तुम्हें पहला इनाम ये नसीब होगा कि तुम अपने शेख की फनाइयत हासिल कर लोगे, कि जब जब तुम पर फजल होगा तो तुम्हारा वजूद तुम्हारा नहीं रहेगा, तुम्हारे शेख का हो जाएगा। जब जब तुम पर फजल होगा तुम्हारी सूरत तुम्हारी नहीं रहेगी, तुम्हारे शेख की हो जाएगी। और सर से लेके पांव तक ये मर्तबा जब हासिल होता है तो इस मर्तबे को फनाफी शेख कहा जाता है। लेकिन फनाफी शेख के बाद सफर रुकता नहीं है, फनाफी शेख के बाद बात मुकम्मल नहीं होती, बल्कि फनाफी शेख के बाद तड़प मजीद बढ़ जाती है, फनाफी शेख के बाद जज्बा मजीद बढ़ जाता है, फनाफी शेख के बाद लगन मजीद बढ़ जाती है, फनाफी शेख के बाद शेख की हुब जो है वो और ज्यादा पैदा हो जाती है। और उस तमाम तर हुब का, शौक का, लगन का, उसकी इंतहा पर जब बंदा जाता है तो उसे अगला इनाम क्या मिलता है कि उसे मर्तबा फनाफिर रसूल नसीब हो जाता है, उसे मर्तबा फनाफिर रसूल नसीब हो जाता है। यानी फनाफिर शेख का मरातब हासिल करने के बाद अगर उसकी लगन का मयार वही रहे, अगर उसकी तड़प का मयार वही रहे, अगर उसका शौक उसी तरह जागा रहे, अगर उसकी जो है वो नीयत उसी तरह बरकरार रहे और उसका जज्बा उसी तरह बरकरार रहे, तो फिर उसको अगला इनाम अल्लाह की ज़ात जो नसीब फरमाती है उस मकाम का नाम फनाफिर रसूल है। यानी खुदा की ज़ात उसे अपने महबूब में फना होने का मौका देता है
अल्लाह उसे ये मजाक अता करता है, ये नेमत उसे अता करता है कि अपने महबूब में, उसकी वजूद को अपने महबूब में जम करने की मेहरबानी फरमा देता है, जिसको मकाम फनाफ रसूल कहा जाता है। और बात यहीं तक खत्म नहीं होती, बल्कि फनाफ रसूल को का मर्तबा पाने के बाद जब हमारे शौक का मयार और बढ़ जाता है, हमारी मोहब्बत का मयार और बढ़ जाता है, हमारी लगन और बढ़ जाती है, हमारे शौक और बढ़ जाते हैं, हमारी हुब और बढ़ जाती है, तो अगली मंजिल जो हमें अता होती है, ये वो मंजिल है जो हमें सारी उम्मतों पर मुमताज करेगी, सारी उम्मतों पर सरदार बनाएगी। और वो नेमत क्या है कि अगला मर्तबा जो हमें अता होता है, उस मर्तबे का नाम फनाफिल ज़ात है। फनाफिल ज़ात है, यानी फनाफिल्लाह कहते हैं उस मर्तबे को, फनाफिल शेख, फनाफिल रसूल, फनाफिल्लाह। तो ये वो मरातब है जो इस निस्बत को अख्तियार करने के बाद, इस सिलसिले आलिया में आने के बाद, अपने शेख की सोबत अख्तियार करने के बाद, इन इनामात को पाने की तड़प, इन इनामात को पाने का शौक, इन इनामात को पाने का जज्बा, इन इनामात को पाने की लगन, इन इनामात को पाने की नियत जब तक ऊंची दर्जे की हमारे अंदर पैदा नहीं होगी, तब तक हम ताबेदारी वैसी नहीं कर सकेंगे जैसी करनी चाहिए। जब तक इन नेमतों को पाने का शौक ऊंचे दर्जे का हमारे अंदर पैदा नहीं होगा, तब तक हम ताबेदारी उस तरह नहीं कर सकेंगे, मोहब्बत उस तरह नहीं कर सकेंगे जैसे करनी चाहिए, इकरार उस तरह नहीं कर सकेंगे जैसे करना चाहिए, पेशवा की बात पर लब्बैक उस तरह से नहीं कह पाएंगे जिस तरह से कहना चाहिए। जब मकसद पर निगाह होगी, जब मकसद की खबर होगी, जब मालूम हो जाएगा, जब समझ आ जाएगी, जब बात अंदर उतर जाएगी कि पेशवा की से मोहब्बत का इनाम क्या मिलेगा, जब पता चल जाएगा कि पेशवा के इकरार का इनाम क्या मिलेगा, जब पता चल जाएगा कि पेशवा पर कुर्बान होने का इनाम क्या मिलेगा, तो फिर बिलाशुबा जिनकी निगाह उस इनाम पर होती है, तो वो हर हाल में कुर्बान होने को तरजीह देते हैं। जिनकी निगाह उस इनाम पर होती है, वो हर हाल में उसकी मोहब्बत में, उसके शौक में, उसकी लगन में अपना तन, अपना मन, अपना धन, जो कुछ भी मालिक ने उन्हें अता किया है, वो इसे उसी की अमानत जानते हुए हर वक्त तैयार रहते हैं कि मेरे मालिक की तरफ से जान मांगी जाएगी तो एक लम्हे की ताखीर नहीं होगी, माल मांगा जाएगा एक लम्हे की ताखीर नहीं होगी, और जो कुछ भी मुझे अता किया गया है, जाहो जमाल जितना भी मिला है, ये सारा उसी की अता है। जब जब वो मुझे इसके लिए बुलाएगा, मैं लब्बैक कहने के लिए हाजिर होऊंगा। और जब तक ये शौक, लगन और जज्बा नहीं पैदा होता, तब तक बंदा इन मकामात की सैर नहीं कर सकता जिनको फनाफिल शेख, फनाफिल रसूल और फनाफिल ज़ात कहा जाता है। और हम खुशनसीब हैं, और बहुत बड़े खुशनसीब हैं कि याद रहे कि हमसे पहले ज्यादा नहीं 200 साल 300 साल पीछे चले जाएं, ज्यादा दूर की बात भी नहीं है, 200 साल 300 साल पीछे चले जाएं, जिस बंदे के दिल में भी हुब पैदा होती थी, जिस मुरीद के दिल में हुब पैदा होती थी कि हुजूर मुझ पर भी मेहरबानी फरमाए, मैं भी फनाफिल शेख, फनाफिल रसूल, फनाफिल्लाह की हकीकत जानना चाहता हूँ, तो मुझे भी वो तालीमात और वो तरीकेकार अता फरमाए कि जिसकी रूह से मैं भी इन नेमतों तक रसाई हासिल कर लूँ। तो याद रहे 200 साल पर पीछे चले जाए, ज्यादा पुरानी बात नहीं है कि फिर पेशवा क्या करता था, पेशवा उससे कई चिल्ले कराता था, कई साल तक उसे गारों की सैर कराता था, कई साल तक उसे पहाड़ों में उससे चिल्ले कराता था, कई साल तक जो है उससे रियाजतें कराता था, और 20 साल 30 साल 40 साल की रियाजतें कराने के बाद पेशवा जो इनाम देता था, आप गौर कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा, पेशवा जो इनाम देता था, वो इनाम ये होता था कि पेशवा उसे शगले बरज़क की तालीम दे देता था। इससे पहले ये तालीम उन्हें नहीं मिली होती थी। नमाज का उन्हें पैगाम मिला होता था, रोजे का पैगाम उन्हें मिला होता था, ज़कात का पैगाम उन्हें मिला होता था, नेकियां करना, बदियों से बचना, ये पैगाम उनको मिला होता था। लेकिन शक्ल बरज़क की तालीम से वो गैर आशना होते थे, और जब उन्हें पता चलता था कि शेख की सोबत में आने के बाद फनाफिल शेख का मर्तबा हमारा नसीब है, शेख की सोबत में आने के बाद फनाफिल रसूल का मर्तबा हमारा नसीब है, शेख की सोबत में आने के बाद फनाफिल्लाह का मर्तबा हमारे नसीब में है, तो फिर वो अपने
पेशवा से उसका तकादा करते थे। तो हुजूर मेहरबानी फरमाए हमारे लिए भी वो रास्ता खोले कि जिसकी मदद से हम भी फनाफी शेख का मर्तबा हासिल कर सके, हमें भी फनाफी रसूल तक रसाई नसीब हो, हमें भी फनाफी अल्लाह की हकीकत से जो है वो उससे पर्दा हटे। तो मेहरबानी फरमाए। तो फिर पेशवा राजी होकर, मेहरबान होकर 20-20 साल, 30-30 साल, 40-40, 50-50 साल ज़ोदो रियाजत करा के फिर उन्हें शगले बरज़ख की तालीम अता करता था। और हम कितने खुश नसीब हैं कि हमसे ऐसा कुछ नहीं कराया गया, हमें ऐसा बेमिसल बेमिसाल सिलसिला मिला है कि हमसे कोई जोद नहीं लिया गया, हमसे कोई रियाजत नहीं कराई गई, हमें कहीं जंगलों में नहीं भेजा गया, कहीं पहाड़ों में नहीं भेजा गया, कहीं गारों में नहीं भेजा गया, कहीं हमसे कुर्बानियां बड़ी बड़ी नहीं मांगी गई, कहीं हमसे अपनी आल औलाद को छोड़ने का नहीं कहा गया, कहीं हमसे अपने घर बार छोड़ने का नहीं कहा गया, कहीं हमसे अपने कारोबार छोड़ने का नहीं कहा गया, कहीं हमसे अपनी बादशाहतें छोड़ने का नहीं कहा गया। और हमें वो इनाम अता हो गया कि हमारा सिलसिला आलिया वो सिलसिला आलिया है कि जिसमें बैत होते के साथ जो पहली तालीम मिलती है, बैत होते के साथ पहली तालीम जो मिलती है, सुन ले कि उस तालीम को शगले बरज़ख कहा जाता है। यानी वो तालीम के जो कई जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजारने के बाद, वो भी शेख की सोबत में, जिंदगी का बड़ा हिस्सा गुजारने के बाद फिर भी किसी को ये तालीम नसीब होती थी, किसी को नहीं होती थी। लेकिन हमारी खुशनसीबी है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें ऐसा बेमिसल बेमिसाल सिलसिला आलिया अता किया है कि जिसकी रूह से खुदा की ज़ात ने हमारे लिए वो रास्ता खोल दिया है जो खुदा की ज़ात ने अपने खजाने खास के लिए खोला था। और हमारी पहली तालीम शगले बरज़ख है। और शगले बरज़ख की सिफ्त क्या है, शगले बरज़ख की तारीफ क्या है, शगले बरज़ख की हकीकत क्या है, मुजद्दिद पाक मेहरबानी फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि शगले बरज़ख जब करोगे चंद रोज, अब हम जितने भी दोस्त यहाँ बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन जो सिलसिले से वाबस्ता है सबको ये तालीम मिल चुकी है। और किसी को साल हो गया, किसी को 2 साल, किसी को 5, किसी को 10, किसी को 15, किसी को 20, यानी एक अरसा गुजर गया इस तालीम को मिले हुए। लेकिन इस तालीम की जो हकीकत है वो गौर करेंगे। अभी हमने उस तरफ सफ़र शुरू नहीं किया, तालीम हमारे पास है लेकिन इसकी हकीकत की तरफ सफ़र शुरू नहीं किया। क्यों? कि जिस तरह का लेवल दरकार है उस तरह का लेवल हमने बनाने की कोशिश नहीं की। जिस तरह की रुजू दरकार है उस तरह की रुजू हमने पैदा करने की कोशिश नहीं की। जिस तरह की हुब दरकार है उस तरह की हुब पैदा करने की कोशिश नहीं की गई। जिस तरह की जिद्दोजहद दरकार है उस तरह की जिद्दोजहद इस तालीम के साथ हमने की नहीं है। जिसका नतीजा ये कि ज़िंदगी का इतना हिस्सा गुजारने के बावजूद भी जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, जहाँ चले जाना चाहिए था वहाँ नहीं गए, जहाँ तक रसाई हो जानी चाहिए थी वहाँ तक नहीं हुई। वजह सिर्फ ये, वरना हमारे नसीब में अल्लाह की ज़ात ने कर दी, हमें उस दौरे नायाब की चाबी दे दी अल्लाह की ज़ात ने। लेकिन जब तक उस मकाम तक पहुँचेंगे नहीं, जब तक उसका ताला अपने हाथों से खोलेंगे नहीं, तब तक उस दौरे नायाब को कैसे पा सकते हैं? मुमकिन को भी मुमकिन नहीं है। लेकिन याद रखें कि अगर खुदा की ज़ात ने हम पर एहसान अदीम ये फरमा दिया है और गौरे नायाब हमारा नसीब कर दिया है और इतनी आसानी से नसीब कर दिया है कि कोई बड़ा मुजाहिदा हमसे नहीं लिया, कोई बड़े मुजाहिदात में से हमें रियाजतों में से नहीं गुजारा, और आसानी के साथ इस नेमत को पाने का तरीका हमें बता दिया गया और उसके बावजूद हम इस नेमत की हकीकत को पाकर दुनिया से ना गए, तो फिर हमारे लिए इससे बड़ा पछतावे की चीज़ और कोई नहीं होगी। और उस वक्त जो है बहुत बड़ी बदनसीबी तस्वर होगी। और हम अक्सर हदीस पाक आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनाते रहते हैं, जो ख़ास इस बात पर सादिक है जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि आपसे किसी ने सवाल किया कि हुज़ूर मेहरबानी फरमाएं कि दुनिया का महरूम तरीन शख्स कौन है, मेहरबानी फरमाएं कि दुनिया का महरूम तरीन शख्स कौन है। तो महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जो समंदर में रहकर भी प्यासा है, वो जो समंदर में रहकर भी प्यासा है। तो सिलसिला साबरिया चिश्तिया आलिया, सिलसिला रामपुर शरीफ हकीकत का समंदर है, हकीकत का समंदर है। और फनाफि शेख, फनाफि रसूल, फनाफिल्लाह, ये तीनों मकामात इस सिलसिले का जेवर है। लेकिन जब तक हम इनको पाने के लिए अपनी तवानाइयाँ सर्फ नहीं करेंगे, जब तक हम अपना लेवल बढ़ाएंगे नहीं, जब तक हम अपने अंदर वो शौक, वो लगन, वो जज्बा पैदा नहीं करेंगे,
जब तक हमारे अंदर महबूब उस दर्जे की पैदा नहीं होगी, जब तक अपने पेशवा की मोहब्बत की इंतहा तक नहीं जाएंगे, जब तक पेशवा की ताबेदारी की इंतहा तक नहीं जाएंगे, जब तक पेशवा पर कुर्बान होने की इंतहा तक नहीं जाएंगे, तब तक ये मामलात हमारे करीब तो ज़रूर हैं, लेकिन हम इन तक रसाई हासिल नहीं कर सकते। और ये बहुत बड़ा जो है हमारे लिए ये तकलीफ दे मौका होगा कि अगर हम इस नेमत के इतना करीब होकर भी इसकी हकीकत तक रसाई हासिल ना कर सके। बात सुन लेना और है, बात पढ़ लेना और है, बात सुन लेना और है, बात पढ़ लेना और है, लेकिन जब तक उसमें से गुजर नहीं होगा तब तक जो बात होनी चाहिए वो नहीं होगी। मुझे पता है कि फनाफी शेख किसे कहते हैं, मुझे पता है फनाफी रसूल किसे कहते हैं, मुझे पता है फनाफिल्लाह किसे कहते हैं, लेकिन अगर कोई मुझसे उसकी हकीकत पूछेगा, उसके अंदर की का राज पूछेगा, तो वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने वो मकाम देखा ही नहीं। जिस मकाम को मैंने नहीं देखा, अकल भी ये कहती है कि मैं उसकी तशरीह नहीं कर सकता। जिस मकाम को मैंने देखा नहीं उसकी तशरीह नहीं कर सकता जब तक कि मैं खुद ना उस मकाम को देख लूँ, मैं उसके बारे में पूरे तौर पर आगाह नहीं हूँ, पूरे तौर पर नहीं बता सकता किसी को। तो बेशक अल्लाह ताला की ज़ात ने हमारे लिए तमाम तरफ अपनी रहमतों के दरवाजे खोले हैं, हमारे लिए तमाम तरफ अपनी मेहरबानियों के दरवाजे खोले हैं, लेकिन जब तक उसकी अता की मेहरबानियों की कदर नहीं करेंगे, जब तक हम इस कानून को, इस फलसफे को समझेंगे नहीं कि जो महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है और जिसकी बाकायदा तकसीम फरमाई आपने कि मुसलमान के लिए दूसरा कानून है और जिन्होंने मोमिन बनना उनके लिए दूसरा कानून है। मुसलमान के लिए कानून ये है कि तुम कलमा पढ़ो, मेरी इबादत करो, मेरे कानून पर चलो, नेकियां करो, बदियों से अपने आप को बचाओ, ताकि तुम एक अच्छे मुसलमान बन सको और जन्नत तुम्हारा ठिकाना हो सके। और जो इश्क की राह के मुसाफिर हैं उनके लिए रसूल अल्लाह की ज़ात मुबारका ने दूसरा कानून मुतारफ़ कराया है। और आपने वहाँ कोई नमाज की बात नहीं कही, कोई रोज़े की बात नहीं की, कोई हज की बात नहीं की, कोई ज़कात की बात नहीं की, जिस तरह खुदा की ज़ात ने नहीं ना की कि जब उस जन्नत की बात आई है जिसमें दूध की नहरें, शहद की नहरें, हूरें हैं, तो कहा गया कि इबादतें करो, रियादतें करो, और उनमें अगर खुलूस होगा तो फिर मैं तुम्हें वो ठिकाना अता करूंगा जिसका नाम जन्नत है, और उसमें दूध की नहरें होंगी, शहद की नहरें होंगी। उस जन्नत को पाने के लिए जिस राह से गुजरना होगा वो इबादतें और रियादतें हैं, और वो भी खुलूस वाली इबादतें और रियादतें। और यहाँ दो लफ्जी बात है कि अल्लाह फरमाता फदकुली फी इबादी, बस दाखिल हो जाओ बीच मेरे बंदे, दाखिल हो जाओ बीच मेरे बंदे के। आप जरा तसव्वुर करें, जो बंदा फनाफी शेख हो गया क्या उसे दोज़ख की आग जलाएगी? जो बंदा फनाफी रसूल हो गया क्या उसे दोज़ख की आग जलाएगी? जो बंदा फनाफी अल्लाह हो गया क्या उसे दोज़ख की आग जलाएगी? अल्लाह ताला की ज़ात ने तो हमारे लिए इतना आसान रास्ता अता कर दिया है कि वहां तो सारी जिंदगी इबादतें करके भी कोई दावा नहीं कर सकता कि जन्नत मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ ये जो रास्ता अल्लाह की ज़ात ने हमारे लिए खोला है, यहाँ अल्लाह ने दो लफ्ज़ी बात मेहरबानी फरमाई है कि फदकुली फी इबादी वदकुली जन्नती, ये दो लफ्ज़ी बात है। और खुदा के महबूब ने भी यही मेहरबानी फरमाई कि मुसलमान को कह दिया कि तू नमाज पढ़ा कर, तू कलमा पढ़ा कर, तू ज़कात दिया कर, तू रोज़ा रखा कर, तू हज किया कर, तू नेकियां किया कर, तू बदबू से अपने आप को बचाया कर। और जब आप मोमिन से मुखातिब हुए हैं तो आपने ये सारी बातें नहीं की, इन सारी बातों को एक तरफ रख के आपने मेहरबानी फरमाई कि तुम्हारे ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकते, तुम्हारे ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकते कि जब तक कि दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा तुम्हें मैं प्यारा ना हो जाऊँ, जब तक कि दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा तुम्हें मैं प्यारा ना हो जाऊँ। तो ये वो फलसफा है कि रसूलुल्लाह की ज़ात मुबारका से लेकर जहाँ जहाँ से भी घूमते हुए आएंगे, ख्वाजा साहब की तरफ चले जाएं, बाबा साहब की तरफ चले जाएं, शेख बगदाद की तरफ चले जाएं, इमाम हसन हुसैन की तरफ चले जाएं, और जिस शहनशाह की तरफ चले जाएं वो रसूल अल्लाह के इसी फलसफे के गिर्द जो है उसकी ज़ात घूमती हुई नजर आएगी। हर किसी ने अपने पेशवा को इसी तरह पूजा है जैसे रसूल अल्लाह ने फरमाया, इसी तरह पूजा है कि ना माँ की परवाह की, ना बाप की, ना बहन की, ना भाई की, ना बीवी की, ना बच्चों की, ना किसी रिश्ते की, ना कारोबार की। जिसने इस तरह से पूजा है वही मोमिन बना, जिसने इस तरह से पूजा है उसी ने मकाम फनाफी शेख, फनाफी रसूल, फनाफी अल्लाह का पाया। और ये कानून रसूल अल्लाह ने मुतारिफ कराया है, रसूल अल्लाह ने बनाया कानून कि आपने जब अपने लिए फरमाया, खुदा के महबूब के लिए फरमाया, तो यूँ फरमाया कि जब तक
मेरी ज़ात तुम्हें कायनात की हर चीज़ से अफजल नहीं होगी तब तक तुम्हारे ईमान मुकम्मल नहीं होंगे। और फिर आगे इसको मुंतकिल फरमा दिया कि आपने फरमाया कि जिस तरह मैं तुम्हारे दरमियान में हूँ एन इसी तरह मेरे औली अल्लाह अपने मसरों के दरमियान होंगे। यानी ये पैगाम दे दिया कि उनके मानने वाले जब तक यही तरीका उनकी ज़ात के साथ अख्तियार नहीं करेंगे तब तक इस मंजिल तक वो नहीं पहुंच सकते। तो बाकी नेमतें तो मिलती रहेंगी, दुनियादारी भी चलती रहेगी, दुनियादारी की नेमतें भी मिलती रहेंगी, दीन भी चलता रहेगा, दुनिया भी चलती रहेगी, लेकिन जिस नेमत की बात हो रही है इस नेमत तक रसाई फनाफे शेख, फनाफे रसूल, फनाफे ला, इस नेमत तक रसाई उस वक्त तक नहीं होगी जब तक कि हमारी मोहब्बत, हमारी ताबेदारी, हमारा जज्बा कुर्बानी का मयार उस लेवल पर नहीं जाएगा जिसको इंतहा कहा जाता है, जिसको मेराज कहा जाता है कि अपने कामों की मेराज तक पहुंचेंगे तो वो अपनी मेराज में सीज करेगा। जो काम हमारे जिम्मे है, जब उन कामों की मेराज तक हम पहुंचेंगे तो फिर वो अपनी मेराज से हमें सरफराज जो है वो करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फलसफा ये कोई बातों तक महदूद नहीं है, ये फलसफा सिर्फ जो है तहरीरों तक महदूद नहीं है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिलसिले के जितने भी दरवेश हैं जो मेरे शेख करीम हादिया बरक से लेकर रसूल करीम की ज़ात मुबारक तक जो हमारा शिजरा है कि मेरे शेख करीम से लेकर रसूल करीम की ज़ात मुबारक तक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी दरवेश हैं सारे के सारे फनाफी शेख हैं, जितने भी दरवेश हैं सारे के सारे फनाफी रसूल है, और जितने भी दरवेश हैं सारे के सारे फनाफी ला है। तो जिनकी सारी लड़ी फनाफी शेख हो, जिनकी सारी लड़ी फनाफी रसूल हो, जिनकी सारी लड़ी फनाफी ला हो, तो फिर उनसे ये मकामात कहाँ दूर है, उनसे मकामात क्यों दूर हो, उनसे उनके ये मकामात क्यों नसीब में ना हो। बिलाशुबा ये नेमत हमारे नसीब में है, बिलाशुबा ये इनामात हमारे नसीब में है, और बिलाशुबा ये नेमत खुदा की ज़ात ने हमारे नसीब कर दी है। लेकिन जब तक इसको पाने के लिए जो कानून बनाया है खुदा की ज़ात ने, जो कानून बनाया खुदा के महबूब ने, जो कानून बताया हमारे शेखैन ने, जब तक उस कानून की पासदारी नहीं करेंगे, जब तक उस कानून को पूरे तौर पर नहीं समझेंगे, नहीं बूझेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक इस नेमत उज़्मा तक रसाई हमारा नसीब नहीं होगी। बाकी काम सारे चलते रहेंगे, याद रखना दुनियादारी हो सकता है आपकी बेहतरीन से बेहतरीन चले, आपका दीन हो सकता है बेहतरीन से बेहतरीन चले, तो आप समझते रहो कि यार मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं नेक भी बन रहा हूँ, मैं नमाजें भी पढ़ रहा हूँ, मैं विर्द वज़ाइफ भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ। तो आप अपने तौर पर तसव्वुर करोगे कि यार मैं बहुत अच्छी ड्यूटी देता हूँ पेशवा की, या बहुत अच्छा जो है मैं दीन पर चलने वाला हूँ। बिलाशुबा आपकी समझ की हद तक बात सही है, लेकिन आप ये सोचे कि क्या आपने मकाम फनाफी शेख का तय कर लिया, क्या आपने इस तरीके कार की रूह से मकाम फनाफी रसूल का तय कर लिया, क्या आपने इस तरीके कार की रूह से मकाम फनाफी अल्लाह का पा लिया? बिलाशुबा ऐसा मुमकिन नहीं है, ये कानून है दरवेशों का बनाया हुआ। और हम मशहूर ज़माना वाक़या है जो आप दोस्तों के अक्सर गोश गुजार करते रहते हैं ताकि हमारी समझ में अच्छी तरह से आ जाए कि बात क्या है, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि यार मुझे तो समझाया ही नहीं गया था, मुझे तो बताया ही नहीं गया था, मुझे तो किसी ने समझ ही नहीं दी थी, बूझ ही नहीं दी थी। अच्छी तरह समझ जाओ, अच्छी तरह गौर कर लो, अच्छी तरह अपना शऊर जगा लो कि बात क्या है। जब तक बात की तह तक नहीं पहुंचोगे तब तक जात की तह तक नहीं पहुंच सकते। सबसे पहले बात की तह तक पहुंचो, जब तक बात की तह तक नहीं पहुंचोगे तब तक जात की तह तक पहुंचना मुमकिन को भी मुमकिन नहीं है। हज़रत अब्दुल कुद्दूस गंगोही शहंशाह का मशहूर ज़माना वाक़या है जो आप दोस्तों के गोशगुजार करते रहते हैं कि आपने 1750 अपने मानने वालों में से 1750 लोगों को खिलका खिलाफत से नवाजा। 1750 आपके खुलफा हैं हजरत अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह ताला अलैह सरकार के। और जब मखदूम पाक के दफीने का वक्त आया, जब मखदूम पाक के दफीने का वक्त आया तो आपने अपने 1750 के 1750 खुलफा को तलब फरमाया। आपने तलब फरमाया, 1750 के 1750 हाजिर हो गए। पेशवा ने बुलाया, 1750 के 1750 हाजिर हो गए। आपने अपने खुलफा से खिताब फरमाया। आम आदमी कोई नहीं है, सिर्फ आपके खुलफा बैठे हुए हैं, कोई आम मुरीद नहीं, कोई आम मुरीद नहीं, आम आदमी तो दूर की बात है,
आम मुरीद नहीं कोई बैठा हुआ, सिर्फ आपके खुलफा बैठे हैं जिनकी तादाद 1750 है और आप अपने खुलफा से मुखातिब हैं। आप पेशवा खुद अपने खुलफा से सवाल कर रहा है और सवाल क्या है कि क्या इस दरवेश की सोबत में रहकर किसी ने अल्लाह को पाया? अब याद रहे कि ये सवाल किसी मुरीद से नहीं हो रहा, ये किसी आम आदमी से नहीं हो रहा, बल्कि अपने खुलफा से हो रहा है जिन्हें साहिब खिलाफत फरमाया है और आपने ही फरमाया है, खुद उनको साहिब खिलाफत किया है, उन्हीं से सवाल कर रहे हैं हज़रत अब्दुल कुद्दूस गंगोही सरकार के इस दरवेश की सोबत में रहकर क्या किसी ने अल्लाह को पाया है? तो 1749 खुलफा का जो जवाब था, 1749 खुलफा का जो जवाब था वो उस मकाम का नहीं था जिस मकाम का आपका सवाल था। 1749 खुलफा में से जो इंतहा को पहुंचे वो यहाँ तक पहुंचे कि हुजूर हमने आपकी सूरत में फला देखा, हमने आपकी सूरत में फला देखा, यहाँ तक पहुंचे थे वो कि हुजूर हमने रसूलुल्लाह की ज़ियारत की है लेकिन आपकी सूरत में की है। हालांकि ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है कि अगर पेशवा की सूरत में रसूल खुदा की ज़ियारत हो गई तो कोई मामूली बात नहीं है, बड़ी बात है। लेकिन आज तो किसी बहुत बड़ी बात का यहाँ होने का वक्त है, आज तो बहुत बड़ी बात का यहाँ होने का वक्त है जिसके सामने ये भी बहुत उस लेवल की बड़ी बात नहीं है। तो जब यहाँ तक का जवाब आ गया कि हुजूर हमने आपकी सोबत में रह के यहाँ तक पहुंचे हैं कि हमने आपकी सूरत में रसूलुल्लाह की ज़ियारत की है, तो आप 1749 खुलफा का जवाब जब सुन चुके तो फिर आपने जो निगाहें झुकाए आपके खलीफा बैठे थे जिनका नाम हजरत जलालुद्दीन थानेसरी था, आपने उनको मुखातिब किया। आपने फरमाया कि जलालुद्दीन बाबा आप बताओ जो सवाल हमने किया है। आप उठकर बाद अब खड़े हो गए, हाथ बांध लिए, अर्ज किया कि हुजूर फिर मेहरबानी फरमाए। आपने फरमाया कि सवाल ये है कि इस दरवेश की सोबत में रहकर क्या किसी ने अल्लाह को पाया है? इस दरवेश की सोबत में रहकर क्या किसी ने अल्लाह को पाया है? अब जो जलालुद्दीन थानेसरी का जो जवाब है वो गोल है ताकि पेशवा को समझ में आए, बाकियों को ना आए समझ। लेकिन आज तो पेशवा ने यहाँ करना था, आज तो बताना था कि बात क्या है, आज तो समझाना था कि बात क्या है, आज तो अदा करना था कि बात क्या है। आज तो अदा करने का दिन था क्योंकि मखदूम पाक के दफीने का दिन था, तो बड़ा दिन था तो बात भी तो बड़ी खोलनी थी ना। दिन जो बड़ा था तो बात भी बड़ी अया करनी थी। तो आपने जब जलालुद्दीन थानेसरी को मुखातिब किया तो आप फरमाने लगे कि हुजूर आपके ही फैज़ से, आपके ही फैज़ से, आपके ही करम से मैंने जिस जगह पर भी पाया आप ही को पाया, आप ही के फैज़ से, आप ही के करम से मैंने जिस जगह पर भी पाया आप ही को पाया। भी ये गोल जवाब है, ये क्लियर नहीं है, लेकिन आज तो मुर्शिद क्लियर कर रहा था ना सारा। आज तो तुम्हें 1749 खुलफा को बताना था कि जो जलालुद्दीन थानेसरी है तुम वो नहीं हो, तुम मेरे ही खलीफा हो, तुम्हें मैंने ही खिलाफत से नवाजा है, तुम्हें मैंने ही साहिब मरातब किया है। लेकिन तुम भी आगाह हो जाओ, तुम भी देख लो, तुम भी सुन लो कि तुम में से भी जो मैंने जलालुद्दीन थानेसरी को जो मकाम अता किया है तुम लोग अभी तक उस मकाम तक नहीं पहुंचे। बेशक तुम मेरे ही खलीफा हो, लेकिन जलालुद्दीन थानेसरी जिस मकाम तक चला गया है तुम अभी तक उस मकाम तक नहीं पहुंचे। आज यही तो अया करना है। तो आपने फरमाया कि आप ही के फैज़ से, आप ही के करम से मैंने जिस जगह पर भी पाया है आप ही को पाया है। आपने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह इतनों में से किसी एक ने तो अल्लाह को पाया, कि इतनों में से किसी एक ने तो अल्लाह को पाया है। फिर मौलाना जलालुद्दीन रूमी और आपको रक्स हो गया, आपको रक्स हो गया और आपकी तबीयत में वो ज़हूर आ गया जो ज़हूर बाबा साहब की तबीयत में आया था कि जिस ज़हूर की हदीस से कुछ ही शायद है कि अल्लाह फरमाता है जब मैं अपने बंदे पर राजी होता हूँ तो उसके हाथ हो जाता हूँ जिससे वो काम करता है, उसकी ज़बान हो जाता हूँ जिससे बात करता है, उसकी आँख हो जाता हूँ। और जिसने मकाम तय किया वो नहीं कह सकता कि मैं भी इस मकाम पर हूँ, मैं इस मकाम पर। हम लाहौर जाते हैं, हम नहीं कहते मैं भी लाहौर बैठा हूँ भाई, मैं भी मुल्तान बैठा हूँ भाई, मैं भी कराची बैठा हूँ, नहीं बताते। अगर उन्होंने रूहानी मकाम तय किया तो वो नहीं बताएंगे कि मैं भी यहाँ पर हूँ, मैं भी यहाँ पर हूँ, मैं भी यहाँ पर हूँ, क्यों नहीं बताएंगे वो? तो जैसे बाबा साहब ने बताया उसी कैफियत का ज़हूर हज़रत अब्दुल कुद्दूस गंगोही पर हो गया और आपको रक्स हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह इतनों में से किसी एक ने तो अल्लाह को पाया। कि अगर आपको रक्स हो गया और वो कलाम ज़बान पर जारी हो गया, मन नाम वल्लाहु या रहमान, जो बाबा साहब की ज़बान मुबारक पे जारी हुआ था कि खुदा की कसम के मैं नहीं हूँ, खुदा की कसम के मैं नहीं हूँ, जान जानम अकल अकलम तन नाम, न जान मेरी न अकल मेरी न तन मेरा है, नूर पाका मामदा दर मुश्ते खाक,
کہ وہ نور جو پاک ذات ہے وہ نور مٹی کی مٹھی میں آج جلوہ گر ہے. کور چشمہ را اگر روشن نہ ہم، اگر تیری آنکھوں میں وہ روشن